નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેટીવીની વિશેષ રજૂઆત ગર્વ છે ગુજરાતને આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, હું છું દેવાંગ. મિત્રો, આપ જાણો છો કે ગર્વ છે ગુજરાત એક એવો એપિસોડ કે જેમાં આપણે એવી હસ્તીઓને મળતા હોઈએ છીએ કે જે બીજા માટે આઈડિયલ બની શકે, ઇન્સ્પિરેશન બની શકે. આજે આપણે જ એક એવી જ હસ્તીને મળવાના છે. દર્શક મિત્રો, આઈપીએસ બનવું, આઈએએસ બનવું એ દરેકનું સપનું હોય છે. દરેક મા બાપ પોતાના સંતાનોને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાના આગ્રહી હોય છે અને મોટો બનીને મોટો ઓફિસર થાય એવા આશીર્વાદ પણ આપતા હોય છે. પણ દર્શક મિત્રો, બ્યુરોક્રેટ્સ એટલે કે આઈપીએસ બનવું, આઈએએસ બનવું, દેશની સેવા કરવી, સમાજની સેવા કરવી એ ખૂબ અઘરું કામ છે. એની માટે ઘણી બધી પરીક્ષાઓ પણ આપવી પડતી હોય છે. દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે ગર્વ છે ગુજરાતમાં ઘણા બધા ઓફિસર્સને આપણે મળ્યા છે જેઓએ ક્યારેય સપનું પણ નથી જોયું કે કદાચ મોટા થઈને એ પોતાની કારકિર્દી આઈએએસ કે આઈપીએસ થઈને બનાવશે. પણ સમય અને સંજોગ બદલાય છે અને પછી એ જ સમય અને સંજોગની સાથે એ વ્યક્તિ બ્યુરોક્રેટ્સ પણ બની જાય છે, દેશની સેવા કરે છે, સમાજની પણ સેવા કરે છે. દર્શક મિત્રો, આજનો જે એપિસોડ છે એ એપિસોડ હું ખાસ આગ્રહ રાખીશ કે જે લોકોએ જીવનમાં અસફળતાનો સ્વાદ ચાખ્યો છે અને જે સફળતા મેળવવા માંગે છે, અસફળતાનો સ્વાદ ચાખીને જે સફળતા સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય, એવા લોકો માટે ખાસ આજનો એપિસોડ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. એમની માટે આજનો એપિસોડ એ જીવનમાં કદાચ એક વળાંક, એક ટર્ન સાબિત થશે. કારણ કે આજે હું એક એવા વ્યક્તિત્વને મળવાનો છું કે જેને જીવનમાં ઘણી બધી અસફળતાઓના સ્વાદ ચાખ્યા પછી આજે એ સફળતાના શિખર ઉપર છે. જી હા દર્શક મિત્રો, આજે આપણે મળીશું વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એસપી જગદીશભાઈ બાંગરવાને. જગદીશજી, સ્વાગત છે આપનું. દર્શક મિત્રો, જગદીશજીની ઓળખ આપી દઉં કે સૌથી ઓછી ઉંમરમાં જગદીશજી આઈપીએસનો મુકામ હાંસલ કર્યો. જગદીશજી 10મા ધોરણની અંદર ફેલ થયા, એટલે કે મેડિકલ રીઝનોના કારણે એમને 10માની એક્ઝામ ન આપી અને પછી ફરી એક વખત તેઓ 10માની એક્ઝામ આપીને પાસ થયા. મહેનત ઘણી બધી કરી પણ જોઈએ તેવું પરિણામ નહોતું મળતું. 12મા ધોરણમાં મેથ્સમાં 38 માર્ક સાથે 12મું પાસ કર્યું. હવે તમે વિચાર કરો દર્શક મિત્રો કે જે છોકરો, જે સ્ટુડન્ટ 10મામાં 2 વખત એક્ઝામ આપી હોય, 12મામાં 38 મેથ્સમાં માર્ક હોય, કદાચ જો કોઈ બીજા વ્યક્તિ હોય તો એ હાર માની લે અથવા તો એવું વિચારે કે કોઈ એવો કોર્સ કરી નાખીશું કે જેથી કરીને આગળ જલ્દી આપણને નોકરી મળી જાય. પણ જગદીશભાઈ એવું વ્યક્તિત્વ નથી. એમને હાર ન માની અને એમને આઈપીએસની તૈયારીઓ કરી અને આજે તેઓ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એસપી તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. જગદીશજી, તમારી જે કહાની હતી, જે ઇનિશિયલ કે 10મામાં તમારે આ થયું, 12મા ધોરણમાં મેથ્સમાં ઓછા આવ્યા છતાં પણ આટલો સરસ મુકામ ઉપર તમે પહોંચ્યા, એવું વિચાર્યું હતું 10માની જ્યારે મેડિકલ કારણોસર એક્ઝામ તમે ન આપી, પછી બીજી વખત આપી, એવું વિચાર્યું હતું કે હવે આઈપીએસ થવું છે કે આઈએએસ થવું છે અથવા તો यूपीएससी કે ક્લિયર કરવી છે, એવો કોઈ પ્લાનિંગ હતો પહેલેથી? मैं हिंदी में ज़्यादा सहज हूँ जी तो बिल्कुल मैं सर, हिंदी में आप जेमा कंफर्टेबल हो जी. असल में जीवन में बहुत बार क्या होता है कि आपके सामने एक आध रास्ते पे आप जा रहे होते हैं तो आपके सामने का दरवाज़ा आपको बंद मिलता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन वहाँ पे ख़त्म हो गया है, वो रास्ता वहाँ पे ख़त्म हो गया है. उसके साथ में आप आसपास नज़र घुमाते हैं तो बहुत सारे रास्ते और भी खुले होते हैं. इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आपको किसी और चीज़ में भाग्य आजमाना चाहिए. जीवन को लेके ये अप्रोच रखना बेहतर है
तो जीवन में जब 10वीं की असफलता मेरे लिए कोई असफलता नहीं थी, खैर, क्योंकि वो मेडिकल कारणों की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। दोबारा मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ। 12th में जैसे आपने बताया कि वो मेरे को मैथ्स में 38 मार्क्स मिले, तो वो मेरे लिए एक वार्निंग थी कि भाई ये जो फील्ड है वो आपके लिए नहीं है, तो आपको कुछ दूसरे फील्ड में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। आपको अपने करियर के लिए ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि भाई पहले मेरा विचार था कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल क्षेत्र में जाया जाए। जब साइंस मैथ्स में मुझे मार्क्स नहीं मिले तो मुझे लगा कि साइंस मेरे लिए नहीं बनी है, या मैं साइंस के लिए नहीं बना हूँ। फिर उसके बाद मैं ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में मैंने बीए चुना, और बीए के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है, तो वो आसपास पूछने पर, सीनियर्स से बात करने पर पता लगा कि सिविल सर्विसेज नाम का एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू करी, और पहले मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की, जिसमें मुझे राजस्थान तहसीलदार सेवा आवंटित हुई। उसके बाद से मैंने यूपीएससी में सिविल सर्विसेज दिया, तो उसमें भारतीय पुलिस सेवा आवंटित हुई। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर ही बनता है। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा जहाँ तक मुझे मालूम है, तो शायद आपके फादर या मदर कोई आईपीएस या पुलिस में नहीं है। हाँ, मेरी फैमिली में कोई पुलिस में या सिविल सेवाओं में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे फादर मुझे फोर्स करे कि वो जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन को मैं ज्वाइन करूं। उन्होंने मेरे को जिस दिशा में करियर चूज़ करना था उसी चीज़ के लिए मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम्हें जिस चीज़ में सहज महसूस हो, तुम जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वही करियर तुम चूज़ करो। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में कोई अगर किसी फील्ड में है तो आप उसी फील्ड में सफल हो सकते हैं, आप दूसरे फील्ड में सफल नहीं हो सकते। हालांकि फ़र्क पड़ता है ज़रूर। आप परिवार में बचपन से एक विशेष एनवायरनमेंट में पले बढ़े होते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसान होती है आपके लिए, और अगर आपको चीज़ों से परिचय पहले से नहीं होता है तो आपके लिए नए सिरे से चीज़ें शुरू करना मुश्किल रहता है। लेकिन यही तो चुनौती है, यही तो जीवन का मज़ा है कि आप जो चीज़ आपने सोची नहीं थी, आपने जिस चीज़ के बारे में देखा नहीं था, वो चीज़ के बारे में आप कोशिश करते हो, उसमें आप सफल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आदमी आगे बढ़े उसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हालांकि आपके जो फादर है वो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपकी माता जी जो है वो हाउसवाइफ है, तो आपने जब ये डिसीज़न लिया कि भाई सिविल सर्विसेज में जाना है तो घर में भी चर्चाएं शुरू होती होगी कि भाई नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एजुकेशन फील्ड में होते हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं भाई एजुकेशन फील्ड में ही अगर उनकी नेक्स्ट पीढ़ी भी इसमें आए तो अच्छा है। तो कोई ऐसा चर्चा होती थी कोई घर के अंदर? शुरू से असल में पढ़ने में ठीक था, तो मेरे फादर साहब का ये मानना था कि तुम्हें जीवन में जैसे कुछ बेहतर जिसे माना जाता है सोसाइटी की दृष्टि में, वैसी चीज़ों के लिए कोशिश करनी चाहिए। बीच में मैंने एसटीसी का फॉर्म भरा था, जो कि टीचर में आप अगर टीचिंग लाइन आपको चूज़ करनी हो तो उसके लिए डिग्री रिक्वायर्ड रहती है। तो मैंने एसटीसी का फॉर्म डाला था, तो मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखने दिया कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं आना, तुम और बेहतर चीज़ों के लिए बने हो तो तुम्हें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने शुरू से मोटिवेट किया, कभी ये नहीं कहा कि आपको इसी क्षेत्र में आना है। तो परिवार का पूरा सहयोग रहा, और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा रखा और मुझे हर तरीके से मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से सहयोग किया, और मेरा एक सपोर्ट पिलर बनकर खड़े रहे। बिल्कुल, फैमिलीનો ફાળો એટલો જ હોય છે, પણ મમ્મીનો સ્વભાવ થોડોક ચિંતાવાળો હોય। દીકરો જો પોલીસમાં જતો હોય, મોટા હોદ્દા ઉપર જતો તો એક ખુશી હોય, પણ એ ખુશીની સાથે સાથે એક છૂપો ડર પણ હોય। ક્યારે મમ્મી એ વાત શેર કરી છે કે ખતરાવાળી નોકરી છે, શું કરવા પસંદ કરે છે, પપ્પા પ્રોફેસર છે તો તું, એટલે આવી વાતો થતી હોય? हाँ, कभी कभार माता जी के मासूमियत भरे सवाल होते हैं कि भाई रात को लेट नाइट ड्यूटी करते हो, तुम अकेले तो नहीं रहते हो, तुम्हारे साथ कोई रहता तो है, या फिर तुम ऐसे अपराधियों से डील करते हो तो अपराधी कई बार तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश तो नहीं करते हैं। तो ऐसा उनको भय रहता है, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे को जो ड्यूटी असाइन होती है उसमें सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं, और हम लोग इतना जोखिम भरा कार्य नहीं करते जिसमें आपको इतनी चिंता करनी पड़े। लेकिन उनको ये एक संतोष रहता है कि हाँ बेटा जो है बड़ा अफसर है, या फिर जो कथित तौर पर समाज में बड़ी नौकरी कही जाती है कि बड़ी नौकरी पर है, तो भी ठीक है। एक दूसरा सवाल कि हर इंसान के पीछे, हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई फैमिली का हाथ तो होता ही है, लेकिन एक आइडियल भी ज़रूर होता है, एक गुरु जिसको बोलते हैं। आप किसको मानते हो अपना गुरु? जीवन में अलग अलग फील्ड्स में मैंने अलग अलग लोगों से प्रेरणा ली है।
जैसे टीचिंग के क्षेत्र में कहूँ तो मैं पहले जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में था, तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर थे दिलीप महेचा सर, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं दृष्टि दिल्ली में एक कोचिंग है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर थे विकास दिव्यकीर्ति सर, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा मैंने। इसके अलावा मैं दिल्ली में रहते हुए मेरे साथ में एक रूम पार्टनर थे, मेरे रूममेट थे 3-4 साल में जिनके साथ रहा, हरियर सिंह राजपुरोहित, उनसे भी काफ़ी सीखा मैंने। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे उदाहरण हो जो सिविल सेवाओं में सेलेक्ट हुए हों, तो उनसे आप काफ़ी प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे में मेरे गांव के पास में ही, मैं जिस गांव से आता हूं उसी गांव से आते हैं गुजरात कैडर में IAS गंगा सिंह जी राजपुरोहित, उनसे भी काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, मेरे ही जैसे बैकग्राउंड से आकर आदमी सिविल सेवाओं में चयनित हो सकता है, तो उनको देख के काफ़ी प्रेरणा मिली। पहली बार ऐसा ख्याल कब आया कि भाई अब सिविल सर्विसेज में जाना है? क्योंकि 12वीं में तो 38 मार्क मैथ्स में, और शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उसके बाद शायद आपने मैथ्स ही चुना था, लेकिन फिर आगे जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें कुछ अभी नहीं हो सकता, तो चेंज करते हैं। 12वीं में जब मेरा अपेक्षित परिणाम नहीं आया तो मैंने फिर ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया और BA का फॉर्म भरा मैंने, फिर उसमें इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। और उसके बाद से मैंने एक ह्यूमैनिटीज़ एक फील्ड में क्या बेहतर किया जा सकता है, सबसे बेहतर से बेहतर मुकाम क्या है, आसपास में लोगों से चर्चा की तो जानने में मिला कि सिविल सेवा नाम का परीक्षा होती है जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है और केंद्र के स्तर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। तो उन दोनों सेवाओं की तैयारी शुरू करी मैंने। अच्छा, अब बात है आपके प्रोफाइल पे, आपके प्रोफेशन पे। દર્શક મિત્રો, જેલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તમે જોયું હશે કે બોલિવૂડની એક સુપર હિટ મૂવી શોલે, અને એમાં એક જેલરનો રોલ हमारी जेल में सुरंग, जो કે આપણે ગુજરાતમાં જેલોમાં સુરંગની વાતો આવી છે, પણ આજે જગદીશ સર જે જેલની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ, અને વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ એટલે અંગ્રેજોના સમયની જેલ। જી હા, લગભગ 1881માં આ જેલ બની હતી। ગાયકવાડ સરકાર સમયથી આ જેલ છે, જો કે અત્યારે તો નવું સ્ટ્રક્ચર પણ બની ગયું છે। લગભગ 1800 જેટલા કેદીઓ અત્યારે આ જેલની અંદર છે, અને એ તમામની જવાબદારી અત્યારે જગદીશ સર ઉપર છે। દર્શક મિત્રો, જેલ એટલે એક ડિફરન્ટ દુનિયા છે। કેદીઓની વચ્ચે રહેવાનું, ઘણા બધા કેદીઓ ખૂંખાર પણ હોય છે, ઘણા બધા એવા પણ લોકો હોય છે કે જે કદાચ સમયના માર્યા હોય છે, એક ક્ષણિક આવેગને કારણે એ લોકો અહીંયા આવ્યા હોય છે, કદાચ જિંદગીમાં બીજી વખત એ લોકો અહીં આવવાનું ક્યારેય નહીં વિચારે। એવા લોકોને અહીંયા કેમ ટ્રીટ કરવા? કારણ કે બહારની દુનિયામાં આપણે તો જેલની વાતો કરીએ છીએ, જગદીશ સર તો બહારની દુનિયા અને જેલની દુનિયા એ બંને દુનિયા રોજ જીવે છે। તો એમને પૂછે, जगदीश सर क्या डिफरेंट है, मतलब ये बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया, और इतनी कम उम्र में आपको इतनी जो जिम्मेदारी दी गई है, तो जैसे कि आपने बोला कि भाई सिविल सर्विसेज में आना, लोगों की सेवा करना क्या अच्छा हो सकता है, तो ये प्रोफेशन और आप ये पोस्ट पे आपने क्या देखा और क्या हासिल किया? अभी मैं पिछले 2 महीने से वडोदरा मध्यस्थ जेल की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। इसमें जैसा आपने बताया, जेल में कुल 1800 कैदी है जिनकी एज ए कस्टोडियन हम लोग पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं पुलिस विभाग में था, तो पुलिस विभाग में हमारा काम रहता है कि अपराध का प्रिवेंशन, और अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसका डिटेक्शन, और उसमें आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर जेल के हवाले कर देना। उसके बाद हमें कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं रह जाता था कि जेल के अंदर वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जेल विभाग में आने से पहले मेरा कोई जेल विभाग से संपर्क था नहीं, तो जेल को लेके हमारे सभी के दिमाग में जो इमेज बनती है वो जनरली फिल्मों को देख के, उपन्यासों को पढ़ के, या फिर काल्पनिक तरीके से बनती है कि हम लोग जेल की ये कल्पना करते हैं कि जेल में काल कोठरियाँ होती होगी, या फिर मार पिटाई होती होगी, या फिर जेल कैदियों को टॉर्चर किया जाता होगा, जबकि जेल असल में इतना नकारात्मक माहौल नहीं है। बाहर आम जनता के मन में ऐसी इमेज भले हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जेल के अंदर हम जो जुडिशल कस्टडी में या फिर जिनको सज़ा हो चुकी है उन कैदियों के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं। तो हमारा ओवरऑल प्रयास इस दिशा में रहता है कि वो कैदी को एक मानवीय गरिमा से युक्त बेहतर जीवन मिले, और इसके अलावा उसको जितने मानवीय अधिकार प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं उतने अधिकार प्रोवाइड करवाएं, और एक बेहतर जीवन शैली वो जी पाए, और एक सुधरे हुए नागरिक के रूप में वो जेल से बाहर निकले। ऐसे हम प्रयास करते हैं।
बिल्कुल आप ऐसे बता रहे हो कि सुधरे हुए नागरिक के रूप में बाहर निकले यहाँ इंसान, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन દર્શક મિત્રો, ઘણા જેલની જો વાત કરવામાં આવે તો જગદીશ સરે જેમ કીધું એમ કે એક ડિફરન્ટ દુનિયા છે અને એ જે કેદીઓ છે એ કેદીઓની વચ્ચે મધ્યસ્થી થઈને અમને રહેવું પડે છે, કારણ કે એક કલ્પના કરો દર્શક મિત્રો કે એક કેદી અહીંયા રહેતો હોય, એને જન્મ ટીપની સજા થઈ હોય, એને ખબર છે કે મારે આખી જિંદગી અહીંયા જ રહેવાનું છે। સવારમાં જ્યારે આપણે ઉઠીએ છીએ ત્યારે એક નવી આશા સાથે ઉઠીએ છીએ કે ચલો આજે હું આ કામ કરીશ, આજે હું આ કામ કરીશ, આજે હું આને મળવા જઈશ, આપણે ઘણા બધા પ્લાનિંગ હોય છે। અહીંયા જે કેદી હોય છે એ કયા પ્લાનિંગ સાથે ઉઠે, કઈ આશા સાથે ઉઠે? એવા લોકોનું મોરલ ટકાવી રાખવા માટે થઈને, એવા લોકોને હિંમત આપવા માટે થઈને એ સૌથી મોટી ચુનौती હોય છે સર। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हो सर? असल में जीवन से जो हमारी अपेक्षाएं होती है वो हम लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं उससे तय होती है। जैसे कोई करोड़पति पिता की औलाद है तो उसको अचानक से निम्न मध्यम वर्ग में डाल दिया जाए तो उसके लिए वो एक जेल जैसा जीवन होगा। तो अचानक से वो वैसी जीवन शैली उसका आदी नहीं है तो उसको बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा, उसको लगेगा कि मैं नरक में आ गया हूँ। तो धीरे धीरे वो आदमी उसको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद उसको भी उस लाइफ स्टाइल में आदत पड़ जाती है। वैसे ही कैदियों के साथ भी ऐसा ही है। शुरू में कैदी जब जेल में दाखिल होता है तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उसको, उसके मन में 100 तरह के ख्यालात आते हैं, वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद वो अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है और जेल के जीवन में खुद को कैसे बेहतर किया जा सकता है, खुद का समय अच्छे तरीके से कैसे व्यतीत किया जाता है, वो खुद इस तरह से खुद को इस दिशा में बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। जेल विभाग उस दिशा में पूरा सहयोग करता है उनका। शुरू में जब भी उनको किसी प्रकार की मानसिक संताप हो, पीड़ा हो या फिर कोई भी फिजिकल इशू हो तो उसके लिए हमारे पास मेडिकल स्टाफ 24/7 अवेलेबल रहता है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी अवेलेबल रहता है, एक सर्जन, एक फिजिशियन, डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध रहती है। और उनको मानसिक रूप से कोई विकार है तो उसके लिए भी हम मनोचिकित्सक का यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं उनको समय समय पर। और इसके अलावा हम लोग उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उनका मन लगा रहे। इसके अलावा जो कन्विक्टेड बिजनेस है उनके लिए हम लोग जेल में उद्योग चलाते हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, जैसे केमिकल डिपार्टमेंट हो गया, वनाट विभाग हो गया, सुथारी विभाग हो गया, या फिर जैसे सफारी के बैग मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, प्रेस डिपार्टमेंट हो गया। तो वैसे बहुत सारे उद्योग हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, तो उसमें वो खुद को एंगेज रखते हैं ताकि उनको उनसे कमाई भी मिले और उनका मन भी लगा रहे। और इसके अलावा हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिसमें म्यूज़िकल नाइट्स हो गई, या फिर उनको बैरक्स में टीवी प्रोवाइड करवाना हो गया, या फिर प्रिजन एफएम हो गया। यहाँ पे हमारे एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे वो पुस्तकें पढ़ के अपना मन लगा सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो जिसमें वो खुद को एंगेज रख सकते हैं और धीरे धीरे खुद को एक बेहतर नागरिक के रूप में रिफॉर्म करने में मदद कर सकते हैं। બિલકુલ દર્શક મિત્રો, તો જેલ એટલે જે આપણી કલ્પનાઓ છે એ કલ્પનાઓથી કદાચ પરે એક દુનિયા છે। જેલ એટલે ફક્ત એવું નથી કે 4 દિવાલોની વચ્ચે 24 કલાક માણસ જીવતો હોય। એ ખુલ્લા મેદાનમાં પણ ફરી શકે છે, એ લાઇબ્રેરીમાં પણ જઈ શકે છે, ટીવી પણ જોઈ શકે છે, એ કામ પણ કરી શકે છે, એ કમાઈ પણ શકે છે અને પોતાના પરિવારને અહીંયાથી પૈસા પણ મોકલી શકે છે। જેલની દુનિયા એકદમ ડિફરન્ટ છે। દર્શક મિત્રો, જેલની દુનિયા શું છે આગળ, કેવી રીતે જેલમાં કામ થાય છે, ખાસ કરીને પોલીસનો શું એમાં રોલ હોય છે, કેદીઓ સાથે કેવું ડીલિંગ થતું હોય છે, જગદીશ સરનું આગળનું પ્લાનિંગ શું છે, કારણ કે ઘણા બધા હર્ડલ્સ પણ આવતા હશે, ઘણી બધી ચુનૌતીઓ હોય છે, એ વિશે પણ વાત કરવી છે। પરંતુ હાલ સમય થયો છે એક બ્રેકનો, મળીએ એક શોર્ટ બ્રેક બાદ। દર્શક મિત્રો, બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। જે આપણી સાથે છે વડોદરા सेंट्रल जेल ना एसपी जगदीश भाई बांगरवा। जगदीश जी, ब्रेक से पहले बात हुई कि जेल की दुनिया कैसी होती है, कैदी कैसे रहते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन जेल में जैसे आपने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ सुथारी काम होता है,
यहाँ लोग टेलरिंग का काम करते हैं, खाना पकाते हैं, यहाँ प्रेस डिपार्टमेंट है जहाँ अलग अलग फाइलें भी बनती है, वाउचर्स भी बनते हैं। यहाँ कैदी कमा भी सकते हैं, अपने घर पैसे भी भेज सकते हैं। तो मतलब ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अगर हम वडोदरा सेंट्रल जेल की बात करें तो कितने कैदी यहाँ इन एक्टिविटीज़ में एंगेज है और दूसरी क्या फैसिलिटीज़ मिलती है उन लोगों को, अपने परिवार से कितनी बार मिल सकते हैं या परिवार वाले आते होंगे। तो ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये डिफरेंट दुनिया है, आपको बैलेंस करके रखना है। कोई मतलब इतना डिप्रेशन में भी नहीं चला जाए कि परिवार से अलग हो गया हूँ, क्या करूँगा, ज़िंदगी से एकदम रस उठ जाता है। तो ये बैलेंस करना भी इतना ही ज़रूरी रहता है। पहले अगर बात की जाए कि जैसे कैदी डिप्रेशन में ना आ जाए या फिर उसको ऐसा ना लगे कि समाज से मैं बिल्कुल ही कट गया हूँ, तो इसके लिए जेल विभाग की तरफ से बहुत सारी उनको सुविधाएं दी जाती है, जिसमें टेलीफोन फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिसमें एसटीडी फैसिलिटीज़ में उनको वीक में 3 टाइम्स अथवा कभी कभार अगर कैदियों की संख्या ज़्यादा है तो वीक में 2 टाइम्स उनको 5 मिनट के लिए घर पे बात करवाई जाती है। तो वो अपना उनका एक कूपन होता है जिसमें 4000 रुपये उनको पर मंथ मनी ऑर्डर वो घर से करवा सकते हैं। उनसे कूपन में एक निर्धारित राशि जेल विभाग द्वारा ली जाती है और इसके बदले में घर पे वीक में 2 बार या 3 बार उनको घर पे बात करवाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मुलाकात कक्ष बना हुआ है जेल में, जहाँ पे उनके ब्लड रिलेटिव्स जो हैं वो मिलने आ सकते हैं और उसमें निर्धारित समय है कि महीने में 4 बार उसको मुलाकात प्रोवाइड की जाती है। तो वो 4 बार अपने घर वालों से 15 मिनट के लिए मुलाकात कर सकते हैं हर एक बार में। और इसके अलावा वो समाज से बिल्कुल कट ना जाए, वो सामाजिक उसके घर में जो भी प्रसंग होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। इसके लिए वो अगर कन्विक्टेड प्रिजनर है, पाका काम का कैदी, तो उसको पैरोल, फरलो और वचगाड़ा का जामीन, ऐसी बहुत सारे छुट्टियां हैं बीच बीच में जिसमें वो बाहर जा सकता है, समाज के साथ वापस अपने जो बॉन्डिंग है उनको वापस मजबूत कर सकता है और उसके बाद एक निर्धारित टाइम पीरियड के बाद वो वापस जेल में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जेल में आने के बाद बिल्कुल ही समाज से कट जाता है। इसके अलावा उसके खुद के आसपास के कैदियों से अच्छे संबंध डेवलप हो जाते हैं। कई बार अब जैसे हम लोग प्रिजन डिपार्टमेंट में उनके कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं तो हमारे से भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है अगर कोई कैदी अच्छा काम कर रहा होता है। तो ऐसा बिल्कुल ही लोनली फील करे ऐसा नहीं है। फिर भी इसके बावजूद भी किसी कैदी को अगर ऐसी समस्या आती है कि वो डिप्रेशन का शिकार है या फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर लंबे टाइम तक चला है, तो उसके लिए हम लोग मनोचिकित्सक को हायर करते हैं जो उसको साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करवाता है। दूसरी बात आपने कही उद्योगों के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे प्रेस डिपार्टमेंट हो गया, इसमें वनाट विभाग हो गया, सुथारी विभाग हो गया, केमिकल विभाग हो गया, धोबी विभाग हो गया, ये सारे विभाग है। उसमें हमारे जो पक्के काम के कैदी है वो काम करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई काचे काम का कैदी है जो अंडर ट्रायल है और जो काम करने का इच्छुक है तो उसको भी हम लोग काम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा कोई अंडर ट्रायल है और उसको भी अगर काम की ज़रूरत है, उसको लगता है कि उसको काम करना है, तो उसको हम लोग काम प्रोवाइड करवाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास काम कितना उपलब्ध है। हम लोग जो कन्विक्टेड प्रिजनर हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद अंडर ट्रायल्स को उस सूची में रखते हैं। अच्छा, मतलब ये अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग मिलती है क्या पहले? अगर इसमें जेल विभाग में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहता है तो उसमें उनको चेहरा करना बोला जाता है कि चेहरा किया जाता है उसका। किसी भी विभाग में जाने से पहले उसका चेहरा किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहता है तो उसको पहले 3 महीने के लिए काचा चेहरा किया जाता है, जिसमें उसको सैलरी नहीं मिलती है, उसको मेहनताना नहीं मिलता है, उसको सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार वो ट्रेन हो जाता है उस विभाग में तो उसके बाद उसका पाका चेहरा किया जाता है और उसकी तनख्वाह चालू हो जाती है। अच्छा, ऐसा सुना है सर कि आप वैसे तो गुजरात से जुड़े हुए, गुजरात बॉर्डर से जुड़े हुए राजस्थान से, लेकिन गुजरात के जो लड़के लड़कियां हैं ऐसा कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स यानी आईपीएस में नहीं जाते, सिविल सर्विसेज में बहुत कम जाते हैं। आप तो न्यू जनरेशन हो सर, आपका क्या मानना है, क्या ये बात सही? और दूसरा कि आप तो 2019 बैच के ही आईपीएस हो, तो जैसी फैसिलिटी आपको राजस्थान में मिली, क्या वैसी फैसिलिटी गुजरात में अवेलेबल है? अगर कोई पढ़ना चाहता है, अगर वो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, तो गुजरात में वो सब चीज़ अवेलेबल है? फैसिलिटीज़ डिमांड के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। जितना डिमांड होगा उतनी सप्लाई होगी। राजस्थान में हालांकि सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी की डिमांड ज़्यादा है, लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है सरकारी नौकरी। इसके लिए वहाँ पे कोचिंग और एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। यहाँ पे गुजरात में पिछले कुछ समय से ये सारी फैसिलिटीज़ आ गई है, किंतु पहले तक ट्रेडिशनली गुजरात बिज़नेस के लिए या फिर अन्य चीज़ें जो पढ़ाई से जुड़ी हुई नहीं है उनके लिए जाना जाता था। लेकिन अभी आजकल के समय में गुजरात के भी बहुत सारे युवा जो हैं वो सिविल सेवाओं में
सिविल सेवा ही नहीं, बाकी अन्य सरकारी नौकरियों में भी अच्छा कर रहे हैं और उनको इस फील्ड में रुचि हो रही है। तो उनके लिए अभी कोचिंग्स अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसी बड़ी सिटीज़ में उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध है जिसमें किसी बाउंड्री का या किसी शहर का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो किसी भी वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके आप कोचिंग या फिर जो भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ गाइडेंस आप ले सकते हैं। शुरू से गुजरात समृद्ध भूमि रहा है, तो सरकारी नौकरी के लिए प्रति इतनी रुचि शुरुआत में नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में युवाओं में सरकारी नौकरियों को लेके बहुत उत्साही युवा है जो मुझसे मिलते हैं। तो अभी ऐसा अंतर नहीं बचा है, खास कि यहाँ के युवाओं में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। जी, अच्छा, ऐसा सुना है सर कि अगर आपको मौका मिले या आपके पास पैसे आते हैं तो मारवाड़ के अंदर, राजस्थान का जो मारवाड़ है, वहाँ आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ करना चाहते हो। तो मतलब ऐसा क्यों, मारवाड़ ही क्यों, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये ख्याल कहाँ से आया? ट्रेडिशनली हरियाणा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, ये सांस्कृतिक रूप से थोड़ा सा पितृसत्तात्मक किस्म का हिस्सा रहा है। तो उसमें महिला अधिकारों का शुरू से लोग इतने जागरूक नहीं हैं महिला अधिकारों के प्रति, और महिलाएं स्वयं भी उतना जागरूक नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय में चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन मुख्य धारा की तुलना में जैसे मैं गुजरात में देखता हूँ या फिर अदर साउथ इंडियन स्टेट्स में देखता हूँ, तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। किंतु जो मेरा जो एरिया है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ में, तो महिला सशक्तिकरण की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं का जो पोटेंशियल है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सका है अभी तक। और इसके अलावा कुछ योग्य महिलाएं हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था, उनको सिर्फ और सिर्फ सामाजिक बंधनों की वजह से ऐसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा जहां वो डिजर्व नहीं करती थी। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण मैंने वहां से, अपब्रिंगिंग मेरी वहीं हुई है तो वहाँ देखे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी की महिलाएं ऐसी चीज़ों से, जिनमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसी चीज़ों की वजह से वो पीछे रहें या फिर वो सफ़र करें। तो मुझे अगर जीवन में मौका मिलेगा और मेरे पास इतने संसाधन होंगे तो मैं ज़रूर उस मामले में काम करना चाहूँगा। अच्छा सर, जो आपका अभी तक का सफ़र रहा 2019 से लेकर 2023 तक का, आप पहले दाहोद थे एसपी में, तो ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है कि यार ये चीज़ मेरे से गलत हो गई, ये नहीं करना चाहिए था? मतलब कभी आंखें बंद करो तो ऐसा गिल्ट फील हो, कोई काम ऐसा साफ तौर पर गलती होने से तो खुद को, कई बार जैसे ये लंबी प्रक्रिया है कानून की, तो उसमें आप कहीं भी किसी भी स्टेप पर अपने को सुधार कर सकते हैं, खुद को रोक सकते हैं। तो मेरे को जहाँ भी जीवन में फील हुआ कि ये गलत हो रहा है, तो मैंने उसको वहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ पे स्टॉप किया है खुद को। लेकिन इसके अलावा भी कुछ, कई बार क्या होता है, आपकी खुद की मजबूरियाँ होती है, कानून इस तरह से बना होता है कि आपके पास ज़्यादा डिस्क्रेशन नहीं रहता, विवेकाधिकार नहीं रहते हैं। तो ऐसे मामलों में न चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि पॉक्सो के कुछ मामलों में या IPC 363 के कुछ मामलों में जहां विशुद्ध प्रेम प्रकरण थे, तो वैसे मामलों में 1-2 में आरोपियों को सज़ा हुई, कुछ अदर रीजंस की वजह से, उनके कुछ फैमिली एनिमिटी की रीजन की वजह से सज़ा हुई। तो वो उसकी वजह से थोड़ा कभी गिल्ट फील होता है कि भाई ये कानून की एक लूप होल छूट जाता है। कई बार की प्रेम प्रकरण में भी कानून को सज़ा देनी पड़ती है, क्योंकि रूल इज़ रूल। बिल्कुल सही। और दाहोद के अंदर तो सर वो मतलब पॉक्सो के केसेस ज़्यादातर वहाँ ही दर्ज होते हैं। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, सही है। अच्छा, एक कोई ऐसा काम कि वो काम करने से संतोष मिला हो आज तक कि यार ये सिविल सर्विसेज में अभी तक का जो मेरा अनुभव है, ये काम मेरे से बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कोई काम? बड़ी उपलब्धियों की बात तो अगर साइड में रखें एक बार तो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें आप करते हैं, छोटे छोटे सुधार आप लाते हैं, तो जो सामने वाला रेसिपिएंट होता है उसकी आंखों में जो संतोष का एहसास आपको दिखता है, उससे आपको लगता है कि हाँ, मेरा यहाँ रहना वर्थ है, यहाँ मेरा काम करना वर्थ है। जैसे आप कुछ नहीं करते हैं, आप जेल में बन रहे चावल थोड़े कच्चे बन रहे थे, उनको पक्का बनवाते हैं, या फिर रोटी ठीक से नहीं बन रही होती उसको ठीक करवाते हैं, तो सारे कैदियों की आंखों में जो संतोष दिखता है, या चाय ठीक से नहीं पक रही होती है उसको पका के देते हैं, तो उससे ही आपको लगता है कि हाँ, मेरा होना यहाँ व्यर्थ है। उसमें कोई बड़ी उपलब्धि वाली बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरवेंशन करते हैं तो उनसे उनको संतोष सा होता है, सुकून मिलता है कि हाँ, उनकी कोई है सुनने वाला या फिर कोई ध्यान दे रहा है। वैसे ही जैसे मैं दाहोद में था तो एक बूढ़े से व्यक्ति थे, 60-65 साल की उम्र रही होगी, तो उन्होंने एक बार मुझे ऐसे ही बोला कि सर, मैं पुलिस में था पहले और मेरे बेटे की एजुकेशन के लिए मैंने लगभग 6-7 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, और गांधीनगर में एक व्यक्ति ने मुझसे इसकी नौकरी लगवाने के लिए 6-7 लाख रुपए मांगे,
और वापस फिर वो 5-6 साल हो गए उसने मुझे रुपए वापस नहीं किए और मैं मांगता हूँ तो वो नहीं देता है। तो फिर मैंने लीगल कार्रवाई करी और एक FIR दर्ज करके सिंपल सा उसको एक नोटिस सा भेजा। तो फिर उसने सारे के सारे पैसे रिटर्न कर दिए। तो उसके बाद से मुझे पता नहीं था कि उसने पैसे रिटर्न किए नहीं किए। एक दिन दोबारा वो मेरे ऑफिस में आए तो मुझे लगा इनका काम नहीं हुआ होगा, ये कंप्लेन करने के लिए आए होंगे, क्योंकि ऐसा रेयर होता है कि काम होने के बाद दोबारा आदमी पुलिस स्टेशन आए। तो वो आए तो मैंने उनको अंदर बिठाया तो उन्होंने सीधा मेरे चरणों में हाथ, तो मैंने उनको उठाया कि आप मेरे पिता की उम्र के, आप यहाँ चरणों में नहीं। तो अचानक से उनकी आंखों में आंसू से आ गए कि सर मतलब आज भी दुनिया में लोग हैं जो सुनते हैं और काम करते हैं, तो ये मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, उसमें मैंने कोई तीर नहीं मार लिया है। लेकिन वो जो उनकी आंखों में आंसू देख के और उनकी जो संतुष्टि और सिस्टम के प्रति उनका जो विश्वास देखा मैंने, तो लगता है कि हाँ काम करना वर्थ है इस फील्ड में। सर, आपने बोला कि गुजरात समृद्ध है और समृद्ध गुजरात में महिलाओं भी सुरक्षित है, महिलाओं का सशक्तिकरण का कार्य इधर हो रहा है। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हो सर और आप जिस जिम्मेदारी पे बैठे हुए हो, तो एक सवाल ये बनता है कि क्या पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है ये पोस्ट पे बैठ के? नहीं, कोई नेगेटिव या नकारात्मक रूप से कोई पॉलिटिकली इंटरवेंशन हो कि इसमें कि ये आरोपी को मत पकड़ो, ये आरोपी को छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार किसी मामले में कोई भलामण करते हैं तो वो लीगल या लॉफुल भलामण होती है, तो उसको मानने में समस्या नहीं है। कोई अगर सिफारिश करते हैं तो वो लॉफुल होती है, लीगल होती है, सबको पता रहता है, क्योंकि जो कानून बनाने वाली बॉडीज़ में ही हमें पॉलिटिकल लोग बैठे होते हैं, तो उनको पता रहता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो गलत, इलीगल और बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसी कोई डिमांड मेरे सामने अभी तक नहीं आई है, क्योंकि सारे समझदार होते हैं, उनको पता रहता है कि ये काम हो सकता है। सर, यंग ब्लड हो और नई सोच रखते हो आप और गुजरात के अंदर हो, तो जैसे कि समृद्ध गुजरात है, तो गुजरात की जो जेल, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ौदा की जो जेल है 1881 में इसका निर्माण हुआ, हालांकि यहाँ न्यू स्ट्रक्चर भी है, लेकिन कुछ सुधार जो ऐसे, हालांकि आपको अभी 2 महीने हुए, लेकिन इन 2 महीनों में आपने क्या देखा और आप क्या बदलाव करना चाहते हो कि ये करना चाहिए ये लोगों, कैदियों के लिए या स्टाफ के लिए या पुलिस के लिए, ऐसा क्या आपको नया लगा, क्या सोचा आपने? जैसे वडोदरा मध्यस्थ जेल की बात की जाए तो जैसा आपने बताया कि 1881 की जेल है, तो उसमें बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुराने हैं, तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके उसमें मैन पावर का इस्तेमाल कम किया जा सकता है, तो वैसे टेक्निकल इंटरवेंशन किए जाने चाहिए। और इसके अलावा कैदियों के वेलफेयर के लिए जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो दूसरे जेल है, तेलंगाना की हो गई, चेन्नई की जो जेल है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको गुजरात की जेलों में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो जेल के सिपाही है उनके कुछ बेसिक सी समस्याएं रहती है, उनको एक बार अगर इंट्रोड्यूस ठीक से किया जाए, अगर उनको एड्रेस किया जाए तो जेलों में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। इसके अलावा वडोदरा की स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं अपने डिपार्टमेंट से चर्चा करके तो कर ही रहा हूँ, बाकी ओवरऑल तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोच विचार है सर आपका। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जो लोग असफलता का स्वाद चख के बैठे हैं, आगे बढ़ना है लेकिन जीवन में असफलता ही मिल रही है, उन लोगों को, और जो लोग IPS बनना चाहते हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मेरा सभी जो तैयारी करने वाले या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो लोग थोड़े से हताश हैं उनसे यही कहना है कि जीवन में वो लोग ज़्यादा सफल नहीं हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं या फिर जिनके पास गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, वो लोग ज़्यादा सफल हैं जो कोशिश करना छोड़ते नहीं है, जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, जिनके पास धैर्य है, जिनके पास लगन है और किसी भी चीज़ के बारे में वो दृढ़ निश्चय करके लगातार उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो लोग उस चीज़ को अचीव कर ही लेते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में हैं तो हताशा के दौर आते हैं, हताशा के क्षण आते हैं जहां आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको लगता है कि नई चीज़ें नहीं हो पा रही है, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ऐसे वीक मोमेंट्स में खुद को संभाल के रखें, खुद के हौसले को बुलंद रखें, अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसको इंटैक्ट रखें, तो आप जीवन में सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। क्योंकि आप बार बार कोशिश करते रहते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज से बाहर है। तो खुद को डिमोटिवेटेड ना होने दें, नकारात्मक विचारों में खुद को पीछे ना हटने दें। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते रहें, जीवन में आपको ज़रूर आपकी मनचाही सफलता हासिल होगी। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और KTV के
दर्शक मित्रों को आपने जो आज अपना अनुभव शेयर किया और जो हमारे गुजरात के युवाओं को जो मैसेज दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, જગદીશ ભાંગરવા વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ એસપી આપણી સાથે આજે જોડાયા હતા અને એમણે જે એમની માહિતી શેર કરી કે જીવનમાં અસફળતાઓનો સ્વાદ ચાખીને સફળતા સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એનું આ તાજું ઉદાહરણ છે જગદીશ ભાંગરવા। હારવું ન જોઈએ, બસ મહેનત કરતા રહો, તમને એક દિવસ સફળતા ચોક્કસથી મળશે। અને યંગ બ્લડ છે, શું એમનું પ્લાનિંગ છે, શું વિઝન છે એ પણ આપણી સાથે શેર કર્યું છે। આશા રાખીએ કે ગુજરાતમાં જે આપણને જાબાઝ અધિકારી મળ્યા છે ગુજરાતની સેવામાં એમને પણ આપણે ઓલ ધ બેસ્ટ કહીએ છીએ। દર્શક મિત્રો, અત્યારે ગર્વ છે ગુજરાતને આ એપિસોડમાં આટલું જ। આવતા એપિસોડમાં નવા વ્યક્તિત્વ સાથે નવા ગુજરાતના ગૌરવને મળીશું। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।